Hi guys, welcome to CPP Hack. In this video, we'll be covering the concept of length of the longest common subsequence. So in this question, you're given two strings x and y, and your goal is to find the length of the longest common subsequence between them. This question can be done by three approaches: recursive with memoization, and dynamic programming. We'll be covering all three approaches in this video. So before starting the question, you should know what a subsequence is. A subsequence is a sequence that appears in the same relative order but not necessarily contiguous. For example, uh, in this string x, ACD is a valid subsequence, but ADC is not a valid subsequence because A, C, and D are occurring in the same order, but there is no C after D. So ACD is valid, but ADC is not valid, right? Similarly, in this example, see, there are a number of possible subsequences, but you notice that in all the subsequences, the order is the same, but you can pick up elements from any index. See, A, B, C are continuous. This is also a valid subsequence. A, B, G. A, B, G is valid, but A, G, B is not valid. Right? So now we have to find the longest common subsequence between, say, with these two strings. So we see that in these strings, B is common. B is present in string X and also in string Y. C is also present in string X and string Y. After B and C, there is A, B, A. So A is also occurring after B and C. A is common between these two strings and again B. So BCAB is a valid subsequence in both of these strings, and the maximum common length between these two, the maximum common length of the subsequence between these two substrings is 4, right? So if there can be multiple examples in this case. If there's BCAB, then there are more to say. BDAB. See, BDAB is present here and BD is present here and AB. So BDAB is also a valid subsequence, right? Also valid common subsequence and of length 4. The maximum possible length of common subsequence between these two strings is 4. Similarly, in the second example, GTAB is a valid sequence in the string X and it is also present in the string Y. See, G, T, A, and B. So your task in this video is to find the maximum length of the subsequence possible. Right. So let's see how it can be done. So see, consider this example where your string x is a b c b d a b and your string y is b d c a b a. Right. Now you start by comparing the last element of both the strings. Okay, there can be two cases: either these two elements can be equal or they cannot be equal. In this case they are not equal, so you can further have two cases. Either you can compare this last element b with the remaining string of a y. This is x and this is y. तो या तो आप b को, अब आपका b और a तो मैच हुआ नहीं, या तो आप इस b को, स्ट्रिंग x के b को स्ट्रिंग y में कहीं पे ढूंढ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि जो स्ट्रिंग y का a है उसको आप स्ट्रिंग x में लास्ट एलिमेंट छोड़ के बाकी में ढूंढ सकते हो. सो यही यहाँ पे आगे एरोज यही डिनोट कर रहे हैं कि केस 1 में क्या हो रहा है कि आप बी एक्स स्ट्रिंग एक्स के बी को ड्रॉप करके जो लास्ट स्ट्रिंग y का a है आप उसको सर्च कर रहे हो x में. So in the first case you are dropping the last element of b and you are searching in the remaining string x. In the second case you are dropping this a from string y and आप
x स्ट्रिंग के b को बाकी के रिमेनिंग y स्ट्रिंग में सर्च कर रहे हो। अब हमने b एंड a को कंपेयर कर लिया एंड 2 कॉल्स कर दी आगे, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट केस है कि हमारा a एंड a इक्वल हो गया है, तो व्हाट वी कैन डू इज हम लेंथ इनिशियली 0 थी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इनिशियली 0 थी, हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन हमें मिल गया, तो हमने लेंथ को इंक्रीमेंट कर दिया एंड a को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब a को भूल जाओ और बाकी की स्ट्रिंग में ढूंढो कि और कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, राइट। तो ये a को ड्रॉप करके हमारे पास बचे a b c b d एंड b d c a b। सिमिलरली अब यहाँ पे d एंड b कॉमन नहीं है, तो जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉल्स करी थी वैसे हमने इस केस में भी 2 कॉल्स करी। फर्स्ट केस में हमने b को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम स्ट्रिंग y एंड सेकंड केस में हमने d को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम स्ट्रिंग x एंड बाकी का पार्ट सर्च किया दोनों स्ट्रिंग्स में। सिमिलरली यही चीज चलती रहती है। जैसे अब सेकंड जो सेकंड कॉल थी उसमें भी b एंड b कॉमन है, तो लेंथ इंक्रीमेंट होके एंड बाकी की जो स्ट्रिंग्स बची हैं उन पे कंपैरिजन चलेगा एंड रिकर्जन के थ्रू हमें बाकी का आंसर मिलेगा। तो व्हाट वी डू इज कि हमें सिर्फ लास्ट एलिमेंट के लिए कोड करना है, बाकी का हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें रिकर्जन आंसर लाके दे देगी। हम लास्ट हम फर्स्ट केस लिखेंगे एंड बाकी का आंसर हमें रिकर्जन लाके देगी। Now see यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि if the input subsequence 1 is x 0 to m minus 1 and y 0 to n minus 1, then and the length of x is m and length of y is n, then first of all आपने compare किए elements, लास्ट एलिमेंट आप कंपेयर करो एंड अगर आपका एलिमेंट इक्वल है देन यू कॉल 1 प्लस बाकी की जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसमें कंपैरिजन। इन द केस अगर लास्ट कैरेक्टर्स ऑफ बोथ सीक्वेंसेस डू नॉट मैच देन आप मैक्सिमम लेंथ कंसिडर करो बिकॉज लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस चाहिए। मैक्सिमम लेंथ हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम द बोथ केसेस जो हम कॉल्स कर रहे थे। तो अब कोड देख लेते हैं रिकर्सिव। फर्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स में तो आप जो स्ट्रिंग्स हैं x एंड y आप वो पास कर रहे हो एंड m एंड n आर द लेंथ्स ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। अगर m इक्वल टू 0 है या फिर y इक्वल टू 0 है, मतलब कि स्ट्रिंग या तो फर्स्ट स्ट्रिंग खत्म हो गई है या सेकंड स्ट्रिंग खत्म हो गई है, तो आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं बचा कंपैरिजन करने के लिए, तो आप उस केस में सीधा 0 रिटर्न कर दो। इन केस जब आपके लास्ट एलिमेंट्स इक्वल थे तो हम लेंथ इंक्रीमेंट कर रहे थे एंड कॉल बाकी की बची हुई स्ट्रिंग पे हम कॉल कर रहे थे, ठीक है। रिटर्न 1 प्लस एल सी एस एक्स वाई m-1 n-1। और अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम मैक्सिमम कंसिडर करेंगे। एक केस में हमने y का लास्ट एलिमेंट ड्रॉप कर दिया एंड एक केस में हमने x का लास्ट एलिमेंट ड्रॉप कर लिया। So this is the recursive code for length of the longest common subsequence. Now let's see recursion with memoization. इसमें क्या हो रहा है आप देखो कि हम जब कॉल्स कर रहे हैं तो ये देखो ए बी सी बी डी एंड बी डी सी यहाँ पे है एंड ए बी सी बी डी एंड बी डी सी यहाँ पे भी है, तो ये कॉल्स रिपीट हो रही हैं। जितनी इसके आगे कंप्यूटेशन करी होगी वही सेम हमें इसके आगे दोबारा से कंप्यूट करना पड़ रहा है, तो ये वेस्टेज ऑफ अ लॉट ऑफ स्पेस एंड अ लॉट ऑफ मेमोरी है। तो इसकी जगह पे अगर हमने जब फर्स्ट टाइम इस वैल्यू को कंप्यूट किया, अगर हम इसको स्टोर करके रख लेते तो जब हमारे पास दोबारा से यही वैल्यू अकर करी तो हमें सिर्फ ये स्टोर्ड वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ पे आंसर पुट करना है, सीधा हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, राइट। सो यही है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन में और कुछ कंसेप्ट नहीं लगता, सिर्फ एक चीज करनी होती है कि हम एक डीपी एरे बना देते हैं, 2D डीपी एरे ऑफ साइज m+1 एंड n+1, जिसमें हम आंसर स्टोर कर लेते हैं सारी की सारी, जो केस आता जाता है हम उसका आंसर स्टोर करते रहते हैं एंड अगर वो दोबारा रिपीट होता है तो हम डायरेक्टली इसी 2D एरे में से आंसर निकाल के उसको सीधा रिटर्न कर देते हैं।
आप अब कोड देख लेते हैं इसका मेमोराइजेशन का। फंक्शन वही है, आर्ग्यूमेंट्स वही ले रहा है वो mn। आप सिर्फ आप इतना करो कि आप एक ग्लोबली एरे डिक्लेयर कर दो 2D एरे int dp m+1 and n+1। अब हम m+1 एंड n+1 क्यों ले रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि जिस केस में हमारा m इक्वल टू 0 है और n इक्वल टू 0 है, वो वाला केस तो हमारा वो है कि बेस केस है, जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग दोनों खत्म हो गई हैं, वहाँ पे हम सीधा 0 रिटर्न करेंगे, वो वाला केस है। अदरवाइज जब m इक्वल टू 1 हुआ, उसका मतलब है कि हम अपने स्ट्रिंग के एलिमेंट 0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब m इक्वल टू n होगा, तब हम स्ट्रिंग n-1 के कंपैरिजन की बात कर रहे होंगे। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो दैट विल बी स्टोर्ड इन dp m एंड n। अगर कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। अब इसके बाद, अब एक बार हमने डीपी एरे डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने डीपी एरे को इनिशियलाइज करना है विद अ वैल्यू जो डिनोट करेगी कि हमारा कंप्यूटेशन अभी नहीं हुई या फिर हो गई है। जब memset एक फंक्शन होता है जो आपके पूरे डीपी एरे को इनिशियलाइज कर देता है विद द वैल्यू गिवन इन दिस मिडल आर्ग्यूमेंट। -1 दिया है तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि -1 विल डिनोट कि मेरे एरे में अभी वैल्यू स्टोर नहीं हुई, तो अभी मुझे कॉल करने की ज़रूरत है आगे। राइट, अब कोड समझ लेते हैं। अगर m इक्वल टू 0 है या n इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स कि स्ट्रिंग जो इन दोनों x और y में से कोई ना कोई स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई है, तो आगे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो ये रिटर्न 0। अदरवाइज अगर dpmn में -1 नहीं है, यानी उसके पास कुछ भी अगर वैल्यू है, अगर 0 है, कुछ भी वैल्यू है, इट मीन्स कि हम ये वैल्यू पहले कंप्यूट कर चुके हैं, तो हम वहां से इसको सीधा रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज ये सेम रिकर्सिव कोड ही है कि हम रिटर्न कर देते हैं 1+, अगर इक्वल है, लास्ट एलिमेंट अगर इक्वल है तो हमने रिटर्न कर दिया। अगर अदरवाइज अगर लास्ट एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हमने लेंथ ऑफ द कॉमन सब सीक्वेंस इंक्रीमेंट कर दी एंड हमने बाकी की बची हुई स्ट्रिंग्स पे कॉल कर दिया। एंड अगर लास्ट एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो हमने दोनों केसेस का मैक्सिमम कंसिडर किया। जब हम फर्स्ट केस जब हम y में एलिमेंट ड्रॉप कर रहे हैं और x के लास्ट एलिमेंट को बाकी रिमेनिंग y के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एंड सेकंड केस जब हम x का एलिमेंट ड्रॉप कर रहे हैं एंड y के लास्ट एलिमेंट को x में कंपेयर कर रहे हैं। राइट, so this is the code for recursion with memorization. Now let's see the dynamic programming approach for the question length of the longest common subsequence. So we start by creating a DP array of size m+1 and n+1, just like I explained for the memorization part. And हमने now when m is 0 और n is 0, this means कि हमारे x और y में से कोई ना कोई स्ट्रिंग 0 हो चुकी है। इस केस में हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, जब भी i इक्वल टू 0 है या j इक्वल टू 0 है, तो आंसर विल बी 0। मतलब फर्स्ट कॉलम जहाँ पे कॉलम इंडेक्स 0 है तो आंसर 0 होगा, एंड फर्स्ट रो जहाँ पे रो इंडेक्स 0 है वहाँ पे भी आंसर 0 होगा। नाउ फॉर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग हमने कंपैरिजन किया b और a के बीच में। b एंड a इक्वल नहीं है। Now, अगर हमारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो, अगर x m-1 was not equal to y of n-1, then what we were doing was LCS
x by m minus 1 comma n और LCS x y m एंड n माइनस 1 इन दोनों का मैक्सिमम ले रहे थे। तो इस केस में हम सिर्फ m को रिप्लेस कर देंगे i के साथ एंड n को रिप्लेस कर देंगे j के साथ। तो ये वाला सेल हमारा i एंड j है। तो अब b एंड a इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉल। अब फॉर दिस सेल हमारा b इज नॉट इक्वल टू a, तो हम कॉल करेंगे i माइनस 1 कॉमा j एंड j कॉमा i कॉमा j माइनस 1 पे। तो ये अगर i कॉमा j है तो i minus 1 is this and j minus 1 is this। तो i कॉमा j से हमने इसका और इसका मैक्सिमम उठा लिया। अब ये 0 एंड 0 दोनों 0 ही हैं तो इसका आंसर हुआ 0। यहाँ पे हमारा 0 ही स्टोर हो गया। मैक्सिमम उठाया यहाँ से इन दोनों में से, वैल्यूज में से, तो हमारा आंसर आ गया 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव किए, यहाँ पे b एंड b इक्वल है। तो जिस केस में इक्वल होते थे तब हम क्या करते थे, हम इंक्रीमेंट कर देते थे लेंथ एंड वी यूज टू कॉल ऑन m माइनस 1 एंड n माइनस 1। सो यहाँ से हमने 1 प्लस कर दिया डायगोनल एलिमेंट। m माइनस 1, i माइनस 1 और j माइनस 1 ये वाला एलिमेंट है तो इसमें हमने +1 कर दिया तो यहाँ पे स्टोर हो गया 1। अब b और c फिर से इक्वल नहीं है तो हम इसका और इसका मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम इज 1। अगेन b एंड b इक्वल है तो हमने 1 प्लस LCS i माइनस 1 एंड j माइनस 1 करना है। i माइनस 1 एंड j माइनस 1 इज दिस एलिमेंट, 0 प्लस 1 is 1। b and d again not equal तो maximum of this and this is 1। b and a not equal, maximum of these two elements 1। b and b again equal तो ये diagonal element का +1 तो the answer is 1। now हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव किए। नाउ डी को कंपेयर करना शुरू किया ए के साथ। डी एंड ए नॉट इक्वल तो डी तो आंसर हुआ हमारा इसका और इसका मैक्सिमम, आंसर 1। अगेन डी एंड बी नॉट इक्वल, इसका इन दोनों का आंसर मैक्सिमम, ओके 1। डी एंड सी नॉट इक्वल, मैक्सिमम आंसर 1। डी एंड बी नॉट इक्वल, मैक्सिमम आंसर 1। डी एंड डी अब इक्वल हुआ है हमारे पास तो हमारे डायगोनल एलिमेंट का मैप, हमारे डायगोनल एलिमेंट में हमने 1 इंक्रीमेंट करना है। डायगोनल एलिमेंट वाज 1 तो हमारा यहाँ पे हो गया 2। एंड अगेन डी एंड ए नॉट इक्वल तो इसका और इसका मैक्सिमम लेंगे तो 2। एंड डी एंड बी नॉट इक्वल, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 2। अब सी है हमारे पास, सी एंड ए नॉट इक्वल, मैक्सिमम वैल्यू 1। C and B not equal, maximum value 1। C and C equal है, इस diagonal element में 1 ऐड करना है, 1 plus 1 2। C and B not equal, maximum value लेनी है 2। maximum value of 2 comma 1 is 2। now C and D not equal, C and D not equal, maximum value लेनी है 2। C and A not equal, maximum value लेनी है 2। C and B not equal, maximum value लेनी है अगेन 2। A एंड A हमारे पास इक्वल आ गए और हमारा तो हम क्या करते हैं इक्वल के केस में 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट तो 1 प्लस 0 1 हो गया। A एंड B नॉट इक्वल, मैक्सिमम एलिमेंट लेना है 2। सॉरी मैक्सिमम एलिमेंट इज 1। maximum of this and this is 1। and A and C not equal, maximum लेना है 2। A and B not equal, maximum 2। A and D not equal, maximum 2। A and A equal, diagonal में 1 plus करना है 3। A and B not equal, maximum value 3। maximum of this and this 3।
Now B and A not equal, maximum value 1. B and B equal, diagonal में add 1, तो answer 2. B and C not equal, maximum value 2. B and B equal, तो diagonal में 1 plus कर दो, 3. B and D not equal, maximum value 3. B and A not equal, maximum value 3. B and B equal, तो इसमें हमने add कर दिया 1, तो it becomes 4. Right. Now A and A again equal, diagonal में add कर दिया 1. A and B not equal, maximum value 2. A and C not equal, maximum value 2. A and B not equal, maximum value 3. A and D not equal, maximum value 3. A and A equal, maximum value A and A are equal, तो increment कर दिया diagonal element में, it becomes 4. And again A and B not equal, and तो इनके maximum value ली 4. So हमारा जो answer है, it is stored in the cell DP NN. So हमारा answer is stored in this last cell. So it is 4. So our answer is 4. And as we calculated in the previous slide, इसमें the longest common subsequence का answer is 4. Guys, I hope you understood the logic behind this question, and in the next video we'll see the code of the length of longest common subsequence by dynamic programming approach.